Hello viewers, I'm Ameya Chumbale and today we have with us today an industrialist with a golden heart. He's a big philanthropist, Dr. Anil Kashi Morarka. Namaskar sir. Dr. Morarka is a director at Mirachem Industries and he is the founder of Ample Mission. Ample Mission is an initiative to serve the underprivileged, supporting education and the nutrition of needy students. He also works closely with several associations and organizations who again are in the field of philanthropy. Dr. Morarka, before we start with your philanthropic activities, we wanted to have a brief idea about your role at Mirachem Industries. Well, Mirachem Industries is a company which is into manufacturing of textile specialty chemicals. Okay. My father, Mr. Kashi Murarka, was the founder. I've been a caretaker for that. I'll be more specific there. कोशिश हमने की कि भाई जो पापा ने जहाँ बिजनेस को लाके छोड़ा था, we try to take it forward at a international level. That's what probably my role is, if it can suffice your question. We cater to the Indian industry who are producers of fabric. When I say fabric, it's about all kinds of fabric. That's our prime business. जिसे हम मेरी रोजी रोटी बोल लो कि it's my bread and butter. We cater to all the top-notch companies here in India and across the globe today. Creating a benchmark in the industry to ascertain that whatever we produce is on green chemistry, eco-friendly. It's a commitment to our planet, Mother Earth, कि हम कम से कम जब हम चले जाएं, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको एक अच्छा सवेरा देके जाएं. Okay. So now coming to your philanthropic activities, Ample Mission is a well-known organization across India now. But could you tell us how you started it and कोई ऐसा ट्रिगर था, कोई ऐसी घटना थी जिसकी वजह से आपको लगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें? ट्रिगर मतलब देखिए हर जैसे आज मेरे साथ आप बैठे हो, मैं अगर मेरा पुराना अतीत याद करूं, इवन आई वाज अ चाइल्ड इन स्कूल, देन टू कॉलेज. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज आल्सो इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ माय कॉलेज. उन दिनों कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो करनी है, जो आज भी दौर चल रहा है, हर कॉलेज में चल रहा है, टू डू समथिंग और दी अदर, सम कल्चरल एक्टिविटीज़, तो हम भी करते थे. बट उस टाइम पे जो क्रंच था पैसे का, वो कहीं दिमाग में बैठ गया कि यू हैव टू कीप बोरोइंग मनी फ्रॉम समवेयर दी अदर. इट्स लाइक बैग बोरो. मतलब यार, वाई डू दैट? यूथ इज अ फैंटास्टिक एक सफ़र है, तो उसको एक सफ़र को हसीन बनाया जाए. आई थॉट टू माई सेल्फ, आई टॉक टू माई सेल्फ कि भाई अगर मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाया, कुछ बन पाया, तो पहला काम ये करेंगे कि यूथ को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उनको कुछ जहाँ ज़रूरत हो जिस चीज़ की वो हम दे सकें. दैट वॉज अ बेसिक रीज़न वाई आई थॉट वी शुड डू समथिंग. एंड आई स्टार्टेड विद द यूथ ओनली इनिशियली कि भाई जितनी कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं वहाँ क्या स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ इट इनिशियली स्टार्टेड. So we'll come to your other activities also, but I have a question in mind that your core business must be keeping you very busy, and we also know that you are a family man, you're a doting father. So how do you squeeze out so much time for these philanthropic activities for the welfare of society? बड़ा झगड़ा है घर पे इस बात का. The most important factor at home is how do you manage things with your only wife in life. It's a tough call. कोशिश करता हूँ बैलेंस करने की, but there are times when see, philanthropy is a word. आप मुझे अगर कहो कि उसकी स्पेलिंग बोल तो मैं शायद नहीं बोल पाऊँगा आपको. But the fact is एक कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि भाई आपको समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है. दैट वॉज द थॉट बिहाइंड. बैलेंस तो देखो ऐसा है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई वाइफ संगीता, हु इज़ रियली स्टूड बिसाइड मी लाइक अ रॉक ऑल फॉर ऑल थिक एंड थिन टाइम्स. बट कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ पक्का होती है. Dr. Morarka has a lot of work in raising awareness about not discriminating against the girl child.
then also transgender issues, cleanliness, hygiene. So could you tell us more about these initiatives that you work for? Yeah, we have been working on these concepts since quite some time. See, hygiene is a very big factor. ये चीज़ हमें अभी जो कुछ साल पहले कोविड गया वो सिखा के गया हमें. आई रियली प्रे टू द ऑलमाइटी कि ऐसा दौर कभी शायद ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखना पड़े किसी को. तो ऑन दो सेम लाइन्स वी हैव बीन डूइंग समथिंग कॉल्ड अ कंसेप्ट कॉल्ड धो डाला. Okay. हमारी टीम, यंग बच्चों की टीम विच इज़ बीइंग हेडेड बाय माय सन सिद्धांत मुरारका, वी गो टू स्लम्स, टू स्कूल्स, और उन बच्चों को जाके सिखाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना. द ओनली लिटिल थिंग बट वी कैन डू दैट और वी आर डूइंग इज मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लीनिंग ऑफ योर हैंड्स. Okay. साबुन से हाथ धोना इतना इम्पोर्टेंट है. फिर उनको उसके साथ 2 हैंड नैपकिन्स कुछ एक गिफ्ट करते हैं. बिकॉज सी, एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट, यूथ इज़ अ पावर हाउस. और आज जो भी हम राह इस यूथ को दे सकते हैं, दे विल टेक द नेशन फॉरवर्ड. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर प्रोबेबली ट्राइंग टू डू, प्रमोट द यूथ, एजुकेट द यूथ. तो वो मैसेज घर पे तो अपने आप पहुँचता ही पहुँचता है. ओके सर, एम्पल मिशन का हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी काम है. सो इसमें मेरे 2 सवाल हैं, सब सवाल, कि एक तो हेल्थ केयर सेक्टर में लैकिंग क्या लगता है आपको, और एम्पल मिशन का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? हेल्थ केयर सेंटर में लैकिंग, देखो मैं कोई नहीं हूँ लैकिंग बताने वाला, बट यार अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आज भी उन रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुँच पा रही है. वी डू आवर बेस्ट पॉसिबल विद इन आवर पेरिफेरी कि हम जाके उनको वहाँ मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मेंटेनिंग योर हेल्थ. हेल्थ इज़ फ्यूचर. ये एक अटूट सच है. आप अगर देख लो, पुरानी बातें भी देख लो. आई टॉक अबाउट डियर फ्रेंड लेट राकेश झुंझुनवाला साहब ऑल्सो, हु रियली टॉक्ड अबाउट इट, कि उन्होंने ज़िंदगी में पैसे बहुत कमाए, लेकिन अगर उतना ही ध्यान वो अगर हेल्थ पे रख लेते तो he could have had a better life ahead. So that is what the core fact is. Okay. Let's not go by names. The fact is अपनी तबीयत को संभालना अपने हाथ में है. लेकिन हम इस रोज़मर्रे की ज़िंदगी में it's like forgotten. Why do that? That's what we try and educate the youth today. कि let's focus on your health. Health is wealth. ये पुरानी चीज़ है, it still applies. सर, हेल्थ से अभी आते हैं एजुकेशन की ओर. द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैनॉट बी रियली ओवरस्टेटेड. एजुकेशन का महत्व तो है ही, एंड यू वर्क ऑल्सो एक्सटेंसिवली फॉर एजुकेटिंग द नीडी स्टूडेंट्स. तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कैसे शुरू हुआ, और आज जब भी आप इतने सारे बच्चों को आपके फाउंडेशन की वजह से पढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको कैसे महसूस होता है? Talking about this man who talks to you, my school days. I was always termed as a backbencher, a hooligan. सारे एडजेक्टिव्स लगते थे टीचर्स के. बट गिविंग इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं यह अटूट मानता हूँ कि हर बच्चे में एक स्पार्क होता है टू एक्सेल. वी ट्राई टू गेट टू दैट. इट्स नॉट, सी, एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, नो डाउट अबाउट इट. बट कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं हमको जो पढ़ाई में इतने कमज़ोर हैं कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई करनी चाहिए. हम कोशिश करते हैं उनको उनकी जो पेरिफेरी है जिसमें वो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं उसमें उनको एक्सेल करवाएं. दैट्स व्हाट एम्पल मिशन डज एट लार्ज. ओके सर, सो एजुकेशन में आज हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि वी आर अ यंग कंट्री एंड यंग इंडिया वगैरह भी वो सब है. सो यूथ का आपको जो पार्टिसिपेशन है, यूथ का कोऑपरेशन आपको कैसे रहा है शुरू से? इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इनिशियली. ओके. नथिंग हैपन्स आउट ऑफ द बॉक्स. तो क्योंकि आज हम जाके जब किसी के सामने बैठते हैं उनको ये समझाना कि यार ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, किसी को नहीं समझना है. तो वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप कराना इनिशियली वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. बट वंस इट हैपेंड, इट इज़ लाइक फायर स्प्रेड्स. कि वो जो यूथ है जो पहले सुनने तैयार नहीं था और आज वो तैयार बैठा है
कि कब हम उनके पास पहुँचें, कब हम उनसे डिस्कस करें, बात करें, और वो उस चीज़ को लेके आगे पक्का बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। सर, हमने जो राजस्थान में आपने जो टीबी के लिए हॉस्पिटल बनाए उसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है। उससे ही संबंधित मैं ये पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल समाज में एक ऐसी मिसकंसेप्शन है कि टीबी कहाँ है, टीबी तो चला गया है, वो तो 80s में था, 70s में था। तो ये मिसकंसेप्शन के बारे में आप क्या कहेंगे और आपको इसकी चुनौतियाँ आती है इसमें? चुनौतियाँ देखिए मेरे से ज़्यादा तो डॉक्टरों को आती है। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, माध्यम हूँ कुछ चीज़ों को तरीके से कंप्लीट करवाने के लिए। बट टीबी आज भी इरेडिकेट नहीं हुआ है, इट स्टिल इज इन एग्जिस्टेंस। इट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट्स स्टिल देयर। इट्स नॉट ओनली अबाउट टीबी, इट्स अबाउट एनी डिजीज़। हमें हर चीज़ की जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। इट्स अबाउट हाउ यू टेक द मासेस फॉरवर्ड एंड ट्राई टू बी ए कैटलिस्ट कि भाई आप क्या बेस्ट उनको एजुकेट कर सकते हो, और उनको एक प्रॉपर राह देने की कोशिश करो आप कि भाई इसमें ये फ़ायदे हैं, इसमें इसके ये नुकसान है। आप उनको समझाओ तरीके से एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ओके। सर, हमने आपके और एक काम के बारे में पढ़ा है कि क्रीमेटोरियम्स बिल्ड करने में, उनको खड़ा करने में भी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। सो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? भैया जी, इट्स नॉट अबाउट मी। क्रीमेटोरियम्स डेफिनेटली हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द फैक्ट इज दैट्स अ फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। इट्स नॉट अबाउट अनिल मुरारका, आवर फैमिली ट्रस्ट called C.B. Murarka Charitable Trust, which has been named on my late grandparents, चिरंजी लाल बदामी देव मुरारका, उनके नाम पे ये किया जा रहा है। शिवधाम जो पहला बनाया गोरेगांव ईस्ट में, उसके बाद में हमारा सौभाग्य हुआ एक और बनाने का इन बिहार डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में। दैट इज़ बीन एक मेरी माँ को समर्पित किया है वो जो वहाँ का क्रिमेशन ग्राउंड है। तीसरा एक और काम चल रहा है अभी। तो इट्स लाइक अ टेल विच शुड नॉट बी डिस्कस्ड, बट येस, बिकॉज आई एम ग्लैड यू टुक इट अप, बिकॉज दिस इज़ अ फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड इफ वी कैन डू समथिंग फॉर दैट, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। सर, अगर हम इसके बारे में पूछ सके कि लोनावला में जो नारायणी धाम है उसके साथ भी आपका जो फैमिली ट्रस्ट है वो जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? नारायणी धाम is just not about Anil Murarka. My father is a trustee there, Mr. Kashi Murarka. That is a project which was thought by 15 people. कुछ 15 लोगों ने मिलके इसका निर्माण किया, और आज वो by God's grace it's really doing very well. That's basically the module was a temple initially, but now of late, apart from that, we have a गौशाला inside. हम हफ्ते के 3 मेडिकल कैंप करते हैं वहाँ पर. It is not absolutely FOC. We charge a very minimum amount so that वो जो minimum amount हम लेते हैं उनसे, उनको उसका एहसास होना ज़रूरी है कि उन्होंने वो 5 रुपये भी खर्च किया है to come here. बाकी सारी facilities are free of cost. We also have the privilege of running our eye hospital there. It's the first eye hospital in Lonavala. We are conducting cataract surgeries there at a very, very minimal cost. So it's happening. Again, after this, उस मंदिर की देख रेख के अलावा जो भी वहाँ पे हम खर्चा करते हैं उसके बाद में कुछ पैसे बचते हैं. We have started adapting municipal schools there, the Adivasi schools. Okay. Again, the same thought to promote the youth at large. सर, इसके से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नारायणी धाम से संबंधित कि कुंभ मेले के बाद भी एक रिलीजियस टूरिज़्म की बात बहुत हो रही है, और उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात हो रही है, जो शायद अपने देश में जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह शायद एक्सप्लोर नहीं हुआ है. सो आपके इस बारे में क्या विचार है रिलीजियस टूरिज़्म के बारे में? सी, इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री, एब्सोल्युटली. ये तो जो महाकुंभ अभी हुआ उसने प्रूव भी दोबारा कर दिया, थैंक्स टू द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी एंड अगेन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी. इतना उभर के आया वो, आई थिंक ग्लोबली नोबडी एवर एक्सपेक्टेड कि इतना उसका आउटबर्स्ट आएगा.
is something fantastic, phenomenal. The reality is, आज इस युग में अभी भी यूथ कहीं ना कहीं कोई चीज़ों लेके गुमराह होता है. उनको अगर प्रॉपर राह दी हमने, जैसे आई एम श्योर अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ टुडे, उसमें से आज अगर आज 70 करोड़ विद देयर, जो बाकी हैं उनको एक इंस्पिरेशन तो पक्का मिला ही होगा कि दिस इज़ व्हाट आवर कंट्री इज़, दिस इज़ व्हाट वी आर रियली प्राउड ऑफ. मतलब हिंदुस्तान की शान रही है वो, दैट्स नो डिनायल. कितनी भी पार्टियाँ कुछ भी बोले, बट द फैक्ट इज येस, इट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग अमेजिंग. Okay. Religious, you said, Hmm. this is what religion is all about. Across the globe, वहाँ लोग थे. All the big daddies also. We all know who was not there. That's what it is all about. Okay. Mr. Murarka, it was a real pleasure speaking to you, and actually I'm saying that kind and thoughtful industrialists like you, I think they reinforce our belief in humanity in a fast and unforgiving age like us. So thank you so much. Absolutely my pleasure. Thanks for having me here.